اچھا جی آگے ذات ہی میں عزت بھی اس کا مطلب نکالا گیا ہے لغت میں، آبرو، حیثیت، وقت، قوم تو خیر ٹھیک ہے کہ ہم برے صغیر میں رہتے نا تو ذات پات تو ویسے ہی ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا آپ نے سوال پوچھا تھا مجھ سے؟ نہیں وہ نفس کے حوالے سے تھا۔ اچھا تو یہ جو ہے یہ ذرا میرا خیال ہم پنجابی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، تیری ذات کی ہے مطلب تیری حیثیت کیا ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، بٹ اٹ از ناٹ دا فلوسافیکل کونوٹیشن آف دا ورڈ سیلف۔ ذات کو بھی تو ہم ذات سے اور صفات سے ہی پہچانتے ہیں۔ ہاں یعنی اگر بہت ذات اور صفات، اس کی ذات اور اس کی صفات، ہاں اس کی نسل سے پھر کہتے ہیں نا کہ اس کی جینیٹکس جو ہیں، اس کے جینز جو ہیں وہ کدھر سے آئے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں یہ خصلت ہے، یہ یوں کر کے چلتے ہیں نا۔ ہاں بٹ اٹ وڈ بی اے فار فیچڈ ایکسپلینیشن آف دا فلوسافیکل ٹرم، کیونکہ ہم یہاں تو زیادہ دلچسپی فلسفے سے ہے نا، لسانی طور پہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل صحیح، ہاں لیکن یہ کہ فلوسافیکل جو انالیسس ہے اس کے لحاظ سے میرا خیال ہے حقیقت، ریالٹی اینڈ ایسنس، جو کہ انگریزی میں بھی جس کا دونوں کا ذکر موجود ہے انگریزی ڈکشنری میں بھی۔ اچھا جی اب آپ کے پسندیدہ نفس کی طرف آتے ہیں، تو نفس کیا ہے اب آپ بتائیں نا، یہ بتائیں گے جی؟ نہیں پہلے نفس کا مجھے بتا تو دیں، آپ کے ذہن میں کیا تصور؟ میں آپ سے لغت کا نہیں پوچھ رہی، نہ فلسفے کا پوچھ رہی ہوں۔ نفس ایک جسمانی اور روح کا مجھے لگتا ہے کوئی ایسا دل کا اور عقل کا ملاپ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی بھی اچائی اور برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اچھا نہیں یہ آپ نے اپنے سارا نہیں، آپ پہلے تو آئے نا لسانی مطلب کی طرف، پھر آئے فلسفیانہ مطلب کی طرف، پھر شاعرانہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے، ہاں نہیں مطلب پھر ادھر بھی چلے جائیں، لیکن نفس جو ہے نا جی اس کا جو مادے کے لحاظ سے مطلب ہے وہ سانس ہے اصل نفس کہہ دیں، لیکن مطلب جو ہے سانس ہے، اور اس کے پیچھے ایک یہاں لغت میں تو بیان نہیں کی گئی، لیکن یونانی جو مائتھولوجی ہے اس کا میں حوالہ دوں گی جو کسی لغت میں نہیں ہے، اور اس کا پھر پنجابی سے بھی رشتہ تھوڑا سا جوڑیں گے کہ کیسے پنجابی میں وہ لفظ موجود ہے، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے موجود ہے، اس لیے کہ سکندر یہاں آیا تھا یا اس لیے کہ سکندر یہاں سے لے کے وہاں واپس یونان چلا گیا تھا، پتہ نہیں کیا ترسیل کا طریقہ تھا، لیکن بہرحال وہ ایک مائتھولوجی جو ہے نا اس کے مطابق جو روح ہے اٹ از ایئر، تو ہوا، ہاں حواس، اس کے لیے یونانی میں لفظ ہے نہیں، سائیکی تو بعد میں آئے گا نا، سانس، سا پنجابی میں سا، اور پرانی یونانیوں کا خیال اسی طرح پنجابی میں لکھیں گے نا۔ اچھا تو پرانے یونانیوں کا یہ خیال تھا کہ روح جو ہے کوئی چیز ہے جو باہر سے آتی ہے اور جسم میں بچے کے پیدائش کے وقت اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، ورنہ وہ تو غیر متحرک مادے کا جسم ہوتا ہے جو اجسام ہوتے ہیں بیبیز کے، اور اس کے اندر تحرک اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ سو ہوا جو ہے یہ وہ ہوا نہیں جو ہم آج کل جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہ فورس ہے جو کہ متحرک کرتی ہے مادے کو، یا مادی بے حرکت اجسام
को हरकत में लाती है। ये वाइटल फोर्स जी जी बिल्कुल force that activates बिल्कुल जी। तो ये देख लें, ये माइथोलॉजी है, लेकिन इसमें भी सच्चाई का जो आंसर है वो बहुत वाज़ेह है। और नफस जो है ना, वो तो फिर एक तो सांस लुगत में है, वो ठीक उन्होंने लिखा, चाहे उन्हें नहीं पता माइथोलॉजी क्या है या नहीं, ये इसका कोई रेफरेंस नहीं है वहाँ पे, लेकिन वो मैंने आपको खुद बता दिया है। सांस, दम, जान, रूह, ये सब, हाँ जी। साइकी का तो फिर इसी से निकला है ना, साई। तो हम ठंडी आंखें भी तो भरते हैं ना, तो जब वो ऑल्सो साई इन इंग्लिश in English also it is the same word with different spellings of course. जिसमें कि तो वो भी जाहिर के मुताबिक जी। इंसान को कहते हैं। नफ्स इंसान को भी कहते हैं। आगे देखेंगे आप, इसके इतने इतने मतलब निकल रहे हैं। आपने कौन सी उर्दू की डिक्शनरी कंसल्ट ये मैंने जी सांस लेने से उसका नहीं, उसमें तो नहीं ये चीजें लिखी हुई। उसका जो रूट वर्ड है, नहीं, ये फिरोजुल लुगात नया एडिशन उसका जो अप टू डेट है जी। उसका रूट वर्ड नून फे और सीन है, नफसा इंसान। नहीं, ये भी लिखा हुआ है, ये भी है इसमें। नहीं, वो ही जैसे आप भी कहते हैं ना, नफरी भी तो इससे निकला हुआ है। नफस जो है वो मायूस से है ना, अगर हाँ। इसका रूट वर्ड देखें तो ये मायूस से है। तो इसी तरह से जो नफसा लफ्ज है ना, इसका मतलब इंसान। नहीं, ये भी है, देखेंगे तसव्वुफ में ये बिल्कुल आपको याद नहीं रहा। डॉक्टर साहब ने अभी बताया ना कि बाहू कहते हैं कि सूरत नफ्स हमारा दी जीवे गुल्लर ताला। ये आगे आ रहा है ना जी, इसलिए हम जहाँ पे हैं वी शुड स्टिक टू दैट पॉइंट, वी शुड डेवलप द कंसंट्रेशन, वरना फिर हमारा जहन बिखर जाएगा। तो ये यहाँ पे देखें, जात जो है इसमें शख्सियत भी लिखा हुआ है, शख्स और शख्सियत ये भी है। यानी कि जात के अंदर तो बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। शख्स तो आपको पर्सन, शख्सियत पर्सनालिटी। और नई जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें जब हम खुदी पे बात करते हैं तो हम खुदी का मुतबादल सेल्फ को नहीं करार देते बल्कि पर्सनालिटी को करार देते हैं। लेकिन वो भी लुगत में मौजूद है, शख्स या शख्सियत, दोनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन जिस चीज पे आप नहीं गौर कर रहे वो ये है कि इसमें एक दाखिली तजाद भी है कि इस जात का जहाँ हकीकत, असलियत, माहियत ठीक हो गया, रूह, बदन, मादा और रूह, यानी दो ऑपोजिट चीजें जो हैं वो एक ही इस्तिलाह के नीचे तो नहीं, इस्तिलाह के तहत आप नहीं ला सकते। जी बिल्कुल। ये यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आई लुगत वाले की कि वो कहाँ जा रहा है, वो किधर से ये चीज ले रहा है। यानी कि समझ आनी चाहिए ना कि ये अरबी से ली गई, ये फारसी से ली गई, ये वो फलां चीज ग्रीक से आ गई। लेकिन ये कैसे हो गया कि रूह और मादा तो दो फर्क चीजें हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि सांस का ताल्लुक उनकी मैथोलॉजी के मुताबिक जो था वो तो था ही खारिज से आती है कोई चीज हवा की शक्ल में और एंटर हो जाती है और वफात के वक्त वो खारिज हो जाती है जिस्म से और मौत वाक़या हो जाती है। जी इसमें उलझन ये है कि मादा के अपने भी दो मानी हैं। हाँ, मादा के अपने भी दो मानी। दूसरा मादा का मतलब होता है सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को इधर जोड़ रहे हैं इन द सब्सटेंस का और तर्जुमे मौजूद है। जब हम अता तला डिस्कस कर रहे होते हैं अच्छा। कुछ मकामात के तहत या जब हम मदारिस तय कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लफ्ज आता है ज़ाते तहत के तौर पे, जहाँ पे अल्लाह की ज़ात की जो वो है ना, लाइक इट्स रूहानियत दैट इज एक्सपोज्ड इन दिस वर्ल्ड, या इट इज लाइक
किस में लफ्ज में? ज़ाते बहत के नाम से एक वर्ड आता है। अच्छा। अगर आप पढ़े ना अंसादर है वो एक किताब थी उसकी टर्मिनोलॉजी ऑफ द सबूत, उसके अंदर मैंने पढ़ा था। अच्छा। वो उसमें शायद ना इस लिहाज से उसमें शायद उन्होंने दे दिया हो कि रूह जब अल्लाह ताला की बात करते हैं तो फिर अल्लाह ताला के साथ जो आइडेंटिटी कोई कैद जोड़ते हैं वहाँ पे रूह का कॉन्सेप्ट, इसी तरह फरिश्तों के बारे में जब नहीं, रूह का तो ठीक है, मादा भी तो बीच में लिखा हुआ है ना। मादा जो है वैसे हो सकता है जैसे इन्होंने कहा कि किसी ऐसे लफ्ज को ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है हाँ जी। जो सही ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे मैटर हाँ, मैटर, क्योंकि मादे को तो मैटर है या रूट है, लुगत के लिहाज से रूट और उधर मैटर नहीं, उसको हम नहीं मादा कहते ना, वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। मैं जो पहले सवाल करने में करता ना हाँ जी। उसके बारे में वो यही एक बात कंफ्यूजन थी मेरे माइंड में कि जिस तरह एक लफ्ज है उसको अगर आपकी डेफिनेशन में देखा जाए थोड़ी सी कि वो रूह के साथ जुड़ा हुआ है या जिस्म के साथ क्या है, खुद ही किस चीज के साथ जुड़ी हुई है। नहीं, खुद ही पे तो हम आ रहे हैं भाई, आहिस्ता आहिस्ता। वही मैं कह रही हूँ, मैं कछुआ हूँ, तो कछुआ कैसे चलता है? पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट। यू आर एक्रीज जो दौड़े लगा रहे हैं। अच्छा जी, आगे जो ये नफस का भी तो वो हो गया कि इसका सांस, दम, जान, रूह, ये ठीक हो गया, ये डिस्कस हमने कर लिया। अब जो आप कह रहे थे ना, सूफिया के मुताबिक नफस जो हैं उनकी 3 वो मदारिज कह लें, अक़साम कह लें, वो अब आप बताएंगे क्योंकि आप पहले जी। अगर आप इमाम गजाली को पढ़ें जी जी, कीमिया सादत में उन्होंने 8 बयान किए। 8 से भी नेमा भी है, मुतशक्ला भी है, हाँ। और मुतखय्यला भी है। मुतखय्यला, जी, नफ्स अमारा, लुआमा और मुतमइन्ना, ये 3 है। ये 3 ये बयान करने लगे थे ना। ये नफ्स मुतमइन्ना इनके पास है, इसलिए कैसे हो जाए? उसमें कुरान कहता है कि इत्मीनान जिन लोगों को है वही जन्नत में जाएंगे, नफ्स मुतमइन्ना के लोग। नहीं, हमारे इम्कानात तो दोज़ख में जाने के ज्यादा हैं भाई, इसलिए आप दोज़ख को बेहतर जरा हैसियत दे दें। अच्छा जी, अब ये है कि जो मेरा वहाँ पे था इतराज, वो चलें आपसे गुफ्तगू में ये हुआ कि हो सकता है ट्रांसलेशन किसी चीज़ पे कर रहे हो जो कि हम नहीं, वो मुस्तामिल नहीं है। सब्सटेंस का अगर कर रहे हैं तो वो नहीं मुस्तामिल, मादा नहीं उसे हम कहते ये उर्दू में। हिंदी में उसके लिए लफ्ज़ है माया। किसके लिए? नहीं, माया तो बिल्कुल और चीज है, वो तो मैं कह रही हूँ ना कि हाँ शेड्स हैं, लेकिन माया तो वेदांता तो सेल्फ गायब हो जाती है, सेल्फ तो कहीं रहती ही नहीं फिर उसमें, इसलिए माया तो उनकी टर्मिनोलॉजी है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। An exposition of the self as depicted in असरार खुदी, और ये एक आर्टिकल या खत समझ लें, उसको आर्टिकल समझ लें, उसका हवाला जो है या उसकी बुनियाद पे मैं आपसे बातें अब करूँगी, क्योंकि ये एक्सपोजिशन इज actually presented by Iqbal himself in असरार खुदी। तो here Iqbal has used 3 terms। ये जो आर्टिकल उन्होंने इंग्लिश में लिखा है असरार खुदी के बारे में, उसमें 3 इस्तिलाहें, ये टर्म्स जो हैं वो मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। वो हैं जी, एक तो एक ईगो, जिसको आपको पता ही है कि ज्यादातर तर्जुमा ईगो ही किया जाता है खुदी का। नंबर 2 खुदी इटसेल्फ, यानी इंग्लिश में भी उन्होंने खुदी ही का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। एंड थर्ड इज पर्सनैलिटी। और फिर उन्होंने खुद ही लिखा है कि ऑल 3 मीन्स अ सेंट्रल फैक्ट दरमानी ई के असल नज़ाम आलम अज खुदी अस्त। ये all three mean a central fact
of the universe as well as of the human being. फारसी का लिखना है आपने, इतने लोग आप फारसी पढ़ रहे हैं. दरमानी इन के असल नज़ाम आलम आज खुदी است. मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश में उनका कर देती हूँ. हाँ जी, कि असल नज़ाम आलम आज खुदी است. लेकिन ट्रांसलेशन जो उन्होंने किया है वो ये है, द ईगो इज द रूट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस. ये क्योंकि ये इंग्लिश आर्टिकल है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी खुद ही किया उन्होंने, मैंने नहीं किया. अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कुछ फर्क दिखाई देता है आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन और फारसी के जो जुमला है उसमें? या आप समझते हैं कि यकसां हैं? निज़ाम आलम का एग्जिस्टेंस उन्होंने किया है, लेकिन जो एग्जिस्टेंस, हाँ, निज़ाम असल में यहाँ पर वो बता रहे हैं एक चीज के उसको एक निज़ाम आलम का communal very sort of that one is not separate from the surroundings. all existence भी ठीक है, all existence. जी, कोई और? यूनिवर्स हो गया ना, आलम तो यूनिवर्स दुनिया, या दुनिया कर लें कायनात. यूनिवर्स तो कायनात होगा, आलम तो दुनिया है. तो रूट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस मानी जी निज़ाम आलम जी इसमें इंसान भी आ जाता है, इसमें यूनिवर्स कहते हैं. Then you part of that. शेप है ना ये जबान. नहीं, यूनिवर्स तो है ही नहीं ना, वो गलती से मैंने कहा होगा. लेकिन आलम तो दुनिया है, दुनिया है. all existence अनलेस के इन पर्शियन इट मीन्स समथिंग. पर्शियन का मुझे कोई इतना नहीं. नहीं नहीं, इधर तो बंदा बैठा हुआ ना हमारा. लेकिन आलम बहुत वसी में खारिज के लिए भी इस्तेमाल होता है. जैसे रब्बुल आलमीन है, उसमें सिर्फ दुनिया का रब नहीं होता, तमाम जहां. वो तो तमाम दुनियाओं का, तमाम दुनियाओं का. ये भी है तो एक आलम में तो फिर क्या ये आलम है, और हमें तो नहीं, मैं वैसे मैं State of mind भी आलम नहीं, है. मैं भी एक आलम हूँ. हाँ, ये भी एक मानी है ना. तो बट रूट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, हाँ ये उन्होंने, ये उनके अपने हैं. आगे जो है पर्सनैलिटी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसके बारे में उन्होंने खुद ही का एक जगह उन्होंने कहा है कि आई एम, कि आई एग्जिस्ट, आई इस खुदी. और इसीलिए मंसूर हल्लाज की उन्होंने तारीफ रिकंस्ट्रक्शन में की है. ये तो असरार खुदी है ना जिससे चीजें ले रहे हैं, लेकिन उसमें तो की है ना मंसूर हल्लाज की तारीफ. हल्लाज के स्कूल के तो वैसे नहीं थे, नहीं हामी नहीं थे, लेकिन इस चीज की है ना कि भाई हकीकत क्या है, ट्रूथ क्या है. आई एम ट्रूथ विथ कैपिटल टी. Anal Haq. I am reality with capital R. तो इस पे वो आगे जो है करार देते हैं कि आई जो है वो उसका आप देखें, उसके लिए ईगो भी इस्तेमाल उन्होंने किया है, उसके लिए पर्सनैलिटी भी किया है, उसके लिए खुदी भी किया है. और आगे चल के इसी आर्टिकल में वो कहते हैं द पर्सनैलिटी आई एम is a central fact in man who, though small, dependent, ज़ईफ, वैसे तो हम कुछ नहीं है ना, yet he is also described as the bearer of the divine trust. So man, in spite of his shortcomings, is special because then he has described several reasons for considering human beings as special being despite their shortcomings and weaknesses. तो हमारी तमाम कमजोरियों के बावजूद हमें फिर भी अच्छे ग्रेड मिल गए भाई.
یہ تو ہوا ہے. اب وہ کیا ہے ریزنس, وہ کچھ اقبال نے بیان کیے ہیں, کچھ میں نے کیے ہیں, آپ دونوں لکھ لیں. جی جو آپ نے پہلے کوٹ کی تھی یہ ان کی ہے, یہ آرٹیکل میں سے ہے, این ایکسپوزیشن آف دا سیلف, وہ خود جو انہوں نے لکھا. جی لیٹر ہے اب, لیکن بعد میں اس کو آرٹیکل کی شکل میں شائع کر دیا گیا, کیونکہ جو لیٹر اتنے فلسافیکل ہوں جن میں کوئی پرسنل بات ہو ہی نہ, تو ان کو ہم مضمون کی شکل میں دے سکتے ہیں. فارورڈ میں ہاں یہ وہ ایڈٹ تو رضاقی صاحب نے کیے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال یہ کیلکٹا ٹائمز کے کیا تھا پتہ نہیں, اس میں پھر شائع بھی ہو گیا, تو وہاں وہ خط کی شکل میں نہیں تھا, آرٹیکل کی شکل میں. اٹس ویری ایزی ٹو ٹرن اٹ انٹو این آرٹیکل, کیونکہ اٹ از اے فلسافیکل لیٹر. جی تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں اور کیوں اپنے آپ کو یا ہمیں اتنا اونچا درجہ دے دیا جس کے پتہ نہیں ہم مستحق ہیں کہ نہیں. نمبر 1 یہ تو لکھ لیا آپ نے نا کہ ان اسپائٹ آف ہز شارٹ کمنگز مین از اسپیشل بیکاز, آگے آپ نمبر 1 بیکاز مین ہیز اے فیوچر, man has a future. اب یہ کن معنوں میں فیوچر کا ذکر کرتے ہیں؟ حیات بعد الموت جس پہ ہمارا عقیدہ ہے اور جس پہ دنیا کے اکثر مذاہب کا عقیدہ ہے, صرف اس کی شکلیں فرق ہیں. جب ہندو بھی کہہ رہا ہوتا نا اگلا جنم, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس نے زندہ رہنا ہے, یہ نہیں کہ اس نے پہلی جو موت آئی ہے, فرض کریں کہ پہلا جنم ہے کسی کا, اور تو وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. نروان کے بعد نروان تو بدھا کا جو جنم ہوتا ہے, ہاں نہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, اس میں بھی زندہ رہتا ہے جب برہما کا جز بن جاتا ہے. ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی وہاں بھی مشروط ہے مسئلہ, یہاں بھی مشروط ہے, یہ اتنا آسانی سے نہیں آپ جز بن جاتے بلکہ کئی دفعہ بنتے ہی نہیں. سبلیمیشن ہم سبلیمیشن کی بات کرتے ہیں, کیا ایک بات سبلیمیشن کی بات کرتے ہیں کہ one can cross to a place where he becomes one with God. ہاں وہ مسٹک ایکسپیرینس, وہ rather than man becoming a co-worker with God, God becomes a co-worker with God. یہ بھی اسٹیج آتی ہے. ہاں وہ بھی میں جیسے کہہ رہی ہوں نا کہ وہ بھی اسٹیج آتی ہے فیملی لائف میں کہ بچے جو ہیں آپ ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں آپ کی پیروی کر رہے ہوتے. ہائے ہائے اللہ نہیں ایسی کوئی اسٹیج فلسفی نہیں, وہ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی جو میں نے نہیں بتائی آپ لوگوں کو, کہ یہ جو اسلام سے پہلے کے صوفیزم مسٹسزم ہے, جو پری اسلامک اور برادر پری ہسٹورک مسٹسزم کی میں نے بات کی تھی, اس میں جب وہ صوفی ہوتا تھا نا, جو پہنچ جاتا تھا, وصال حاصل کر لیتا تھا, نہیں وہ مطلب نہیں وہ تو خیر ان کو آسمانی دلہنیں کہا جاتا تھا, چاہے وہ مرد ہوتے تھے لیکن آسمانی دلہنیں کہا جاتا تھا. اور یہ فیکٹ جو ہے پنجابی شاعری میں بڑا واضح ہے, جہاں پہ صوفی جو ہے, جو پہنچا ہوا صوفی ہے, وہ مؤنث بن کے ذکر کرتا ہے خدا کا, محبوب مذکر کے اس میں سیرے میں, اور یہ جو ہے اور وہ ساری جو باتیں وہ عورتوں والی ہیں, چوڑیوں کی پتہ نہیں کس کس کی. ہاں بالکل جی. لیکن یہ بحث ہوتی ہے کہ کیوں جو جتنی بھی یہ صوفی شاعری ہے اور بھکتی کی جتنی بھی شاعری ہے اس میں ہندو ٹریڈیشن میں فیمیل وائس کیوں ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی نا ابھی کوئی ٹریڈیشن. تو کیا But in Persia, women are
in that position. In Turkey also. नहीं शायरी में हाँ, कल्चर ही से तो शायरी निकलती है। मैं हाँ जी वो मैं समझ रही हूँ, जी जी कह रही हैं, वो भी वो सही बात है, लेकिन यहाँ तो जब मर्द लिखता है हाँ तो औरत बन के लिखता है। वॉइस में लिखता है मैडम इसकी नहीं, जबकि हम जो हैं हमने जब लिखना नहीं जब औरतों ने शायरी शुरू की या औरतों ने फिक्शन शुरू किया तो मर्द बन के लिखा, वो तो एक मजबूरी थी हमारी। औरतों ने मतलब किससे लिखा कि वी फॉलोड द इरानियन ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग महबूब एज ए मर्द। वो तो एक बात जो मैडम कह रही है उसकी रीजन मुझे बहुत लगती है। उसकी रीजन ये लगती है कि जो करीब तरीन मकाम में इत्तेसाल कोई शो कर सकता था ना, तो दैट वाज लाइक यूनियन। तो जो यूनियन था, जो सबसे अच्छा वो कॉन्सेप्ट शो कर सकता था, तो वो खुदा को मानना शो नहीं कर सकता था। तो अल्टीमेटली उसने इंसान हाँ दैट्स राइट। हाँ नहीं वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि खुदा को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसने फिर अपने लिए वो जगह अगर कि आप जो फेमिनिस्ट बाइबल आई है उसमें खुदा को भी कर दिया है। हाँ जी वो वाला बात। हाँ प्रिजम्पशन होती है बेसिकली जो सोशल साइंसेस की थ्योरीज है सवाल है कि जी। ये वॉइस जो है ये क्यों होती है, मेरे ख्याल इसका सवाल है। ये सवाल मेरा ख्याल इसलिए है कि फीमेल में मोहब्बत करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। आप माँ के रोल में भी देखें, सेक्रीफाइस की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये भी फीमेल को फेस करना पड़ता है ना, फीमेल को फेस करना पड़ता है। इसमें डार्क साइड भी है जी जी और वो ये कि ब्रदर में ये जो शायरी लिखी गई है ज़्यादा उस पर लिखी गई है जब खवातीन का दर्जा बहुत कमतर समझा जाता था, खास तौर पर ये हाँ मर्दों का जो स्टेटस बेसमेंट और सब निगेशन का एक पार्ट है कि आपने सही है। जवानी से डिस्पर्दा But when Amir Khusro writes, then you don't see that. Yes. वो उसमें एक choice है। हाँ टर्किश ट्रेडिशन का कुछ थोड़ा सा तो होना है ना, ये तो और निजामुद्दीन औलिया के बड़े महबूब थे, जी। करते थे उनके कलाम को। तो ये राय है। अच्छा चलें अब हम बाकी बहुत दूर चले गए हैं जी। हाँ जी ये मर्द और औरत के हवाले से अच्छा कराम होते हैं, इनको औरत की तरफ ज्यादा रुझान बता रहे हैं आप लोग। नहीं ये तो नहीं मैंने कहा। औरत की तरफ मतलब हमने तो शायरी का जिक्र किया ना, आप पहले शायरी थोड़ी सी पढ़ लें, पंजाबी की शायरी थोड़ी पढ़ लें अगर आप पंजाबी हैं। इफ़ यू आर पंजाबी, इफ़ यू आर सराइकी, गो टू सराइकी, वो देखेंगे आप कि औरत बन के खुदा से मोहब्बत का इजहार सूफी कर रहे हैं, सूफी शौरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम है तो मर्दानी होती है, वो शादियाँ करते हैं और जंगे लड़ते हैं ना रखते हैं, लेकिन जब रूहानियत आती है इधर ईसा अलैहिस्सलाम है तो उन्होंने शादी भी नहीं की, बाद में फिर लंबे कर लिए उन्होंने। नहीं वो तो उस जमाने में फैशन था लंबे बालों का। नबियों के बाद तो रहती है नहीं वैसे भी मोस्टली अंबिया ने बकरियां चराई है। हाँ हाँ चरवाहे। ये उस वक्त का ना रवाज था लंबे बाल। ये जो लंबे बाल है ना जी, जैसे कुछ साल पेशतर यहाँ भी फैशन आया था, नहीं अभी आया था, अभी उनकी लंबी जुल्फें। पसंद नहीं है। हाँ ये असल में इसमें मेरा ख्याल सुन्नत भी है, ये नबियों का वो था ना कि बालों को कैंची नहीं लगाते थे, कैंची नहीं लगाते थे। और भी लिखा हुआ था जिसमें आप शादी गुरेज करें, नसीहत होती है शादी ना करें। कौन करता है? मैं तो नहीं कर रही। नहीं ये जो ईसा के साथ तो हमारा शादी ना करने की बात जो है ना सुफिया के नजदीक, वो उस वक्त की सुफिया जैसे खाते सुबह निकल पानी पीने को तो था कुछ नहीं, क्योंकि शादी कर दी। नहीं वैसे एक बात है मैं आपको बताऊं, नहीं नहीं सुने आप एक सेकंड मुझे दें। मौलाना रूम ने कई शादियां की हैं, एक छोड़े आप बताएं। नहीं मतलब ये कि नहीं लेकिन नहीं ये मना तो नहीं किया। मौलाना रूम
एक मिसाल है। मशवरा है, मना नहीं, मशवरा है। नहीं, मशवरा भी नहीं, मशवरा आप ईसाइयत का वो सोच रहे हैं। मैडम जो ईसाइयत में हाँ जी, उसमें ये जाके होता था कि आपने ही इज मिक्सिंग इट अप विद रोमन कैथोलिसिज्म। इसी तरह हिंदुओं में वेदांत में जब ब्रह्मचारी फिर मना हो जाता तो ब्रह्मचारी और नॉट रॉक वाइफ और नहीं नहीं, असल में ही इज लिविंग इन कनाडा, इज रिजाइडिंग देयर, ही इज मिक्सिंग इट अप विद रोमन कैथोलिसिज्म। जी, जी। तो वो उसमें है कि शादी नहीं करनी। लेकिन फिर ये देखिए, देखें, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं भाई मेरे, मैं इकबाल की बात कर रही हूँ। इकबाल ने तो की थी ना। रसूल करीम को तो देखे ना, तो आपने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। नहीं कोई ना कोई, नहीं, पहली शादी तो आपने खुद की, क्योंकि उन्होंने ऑफर पहली शादी उन्होंने खुद की है। अच्छा, मेरा ख्याल है वी आर वेस्ट बाय चाय पे शादियों का नंबर गिनेंगे कितने कितनी की हैं। तो दिस इज, हाँ जी, नंबर 2, मैन हैज द कैपेसिटी टू ग्रो। जी। Number 3, ability to assimilate the elements of the universe. Number 3, ability to assimilate the elements of the universe. Number 4, नंबर 3 का था, ability to assimilate the elements of the universe. Number 4, power to absorb the divine attributes. Number 5, there is a source of dynamism in man. सोर्स कहें, फोर्स कहें, जो भी मर्जी कहें। Number 6, we don't have to give any arguments or proofs for the existence of the self or khudi, because it is a fact of our experience. हाँ, देखें ना, आए नहीं, आए के बगैर तो नहीं ना कुछ भी फिर। Because it is a fact of our everyday experience. सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। हाँ, उसके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। Number 7, the material world confronts the self of man there is a confrontation between the outside world, the material world, and the self of man. But The medieval world confronts the self of man. but this sort of conflict or confrontation develops the self. यानी कि जितना हम पे मुश्किलें पड़ेंगी, खारिज से मसाइल आएंगे और हम उनको हल करने की तगदो में मसरूफ होंगे, उतनी ही हमारी खुद ही हमारी सेल्फ मतलब बढ़ती चली जाएगी। और अगर बाहर से कोई तकलीफ ही नहीं आ रही तो फिर क्या नतीजा होगा? इनएक्शन, पैसिविटी। तो उससे खुद ही डेवलप नहीं होती। दैट इज अ नेगेटिव फैक्टर। तो डरना नहीं चाहिए मुश्किलात से। ये एक सबक है हमारे लिए भी। नंबर 9, अच्छा 8 आपने कर दिया ना कि दिस ऑब्स्टेकल। अच्छा नंबर 8 ये मैंने दोनों को जोड़ दिया ना जी। उसमें था ना कि मटेरियल वर्ल्ड कन्फ्रंट्स द सेल्फ ऑफ मैन as its other, the other. It is a philosophical term again, the other. As it develops the The other helps it develop itself. हाँ, और नंबर 8 है
कि this sort of conflict or obstruction develops खुद ही, यानी कि इनसे घबराने के बजाय हमें इनका खैर मकदम करना चाहिए। ये एक फिलोसॉफिकल टर्म है जी, इट्स वेरी मॉडर्न टर्म, लेकिन इकबाल ने भी यूज की हुई है, तो मैं इसलिए इस पे अदर की तो जी बड़ी हाँ बहुत 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 वसी इस पे लेक्चर अलग हो सकता है। तो इस पर थोड़ी सी बात की जाए। हाँ जी, वक्त तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं ना, मेरे साथ कौन है, एक्लीस है, एक्लीस से मुकाबला है। ये मैं फिर रिपीट कर दूंगी अभी तीर लगा देंगे जी। इसके दिल पे तीर लगा देंगे। नहीं नहीं, इनको हम कहते हैं दौड़ें दौड़ें। दी अदर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें, क्योंकि इट इज अ फिलोसॉफिकल टर्म एंड इट्स अ वेरी मॉडर्न टर्म। लेकिन एक हाँ ये ना होना कि मैं बाहर निकलूं तो गोइंग टू हेल विद ये जो है, तो इकबाल के ख्याल में द अदर जो है ना जी, उसके कई मतलब हैं। अब इस पे आप चाहते हैं तो इस पे तो मैंने मजमून लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं फिर बहुत ही बातें करूंगी तो वो भी तंगी वक्त इसकी इजाजत नहीं देती। वो अलहदा थोड़ा सा कर लेते हैं इसको कि द अदर का मतलब होता है, एक तो आप है ना कि मैं हूं, मैं, लेकिन मैं क्या हूं मुझे पता चलता है जब आप मुझे बताते हैं कि आपने आज बहुत अच्छी बातें की या आपने आज अच्छी बातें नहीं की। आप जो हैं वो अमूमन इस रंग के कपड़े पहनती हैं, तो मुझे फौरन मुझे पता चलता है, कॉन्शियस में होती हूँ कि अच्छा मुझे उस रंग से कोई ताल्लुक है मेरा रूहानी। ये यानी मेरी जात का असबात दूसरों के जरिए से होता है। अगर आप नहीं होंगे तो मैं भी नहीं। जो हम आपस जो सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, जो सेल्फ डायलॉग्स, हाँ वो भी कोशिश है ना, होती है। नहीं हम इसको देखें क्यों कर रहे होते हैं, मुझे बताएं ना। अगर हम इतने खुद कफील हैं और खुद इन्हिसार हैं, तो व्हाई दिस लाउड थिंकिंग? उसका मतलब है कि nobody is available to us to whom we can say something, we can share something with him or her, and then we are lonely. And when we are lonely in existence, in existential sense, that means I don't exist. I exist because you exist. Because you exist. बिल्कुल। The formation of my existence is the other. If the other, समझें, फर्ज करें कोई ख्याली कहानी बना लेते हैं कि कोई बंदा है, वो किसी जहाज उसका समुद्री बह गया, टूट फूट गया, वो अकेला एक जजीरे पर रह गया। नहीं, वो रॉबिन्सन क्रूसो का नॉवल है। इट्स वो वही से नहीं, लेकिन वही से नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये हिस्पानी मुसलमान था, इब्ने तुफैल, उसका नावल था है इब्ने यकजान। उससे रॉबिन्सन क्रूसो का आइडिया चुराया गया। उसने फिलोसॉफिकल नावल लिखा था, अंग्रेजों ने उसको जरा नीचे की सतह पे लेके एक मुहिम्माती एडवेंचर स्टोरी बना दी। लेकिन फर्ज करें कि कोई ऐसी जगह है जहां पे आप लोग हैं ही नहीं, ठीक है? आपको मैंने कभी नहीं देखा, बचपन से लेके अब तक किसी को भी नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा। लेट्स सपोज दैट सच अ सिचुएशन अराइज, तो मुझे कोई अपनी जात का कोई एहसास या शऊर होगा? नहीं होगा। इसीलिए मौजूदा वक्त में मौजूद होने का जो एहसास है हम सबको, मौजूदा की नहीं बात कर रहे। फिलॉसफी हमेशा यूनिवर्सल, समथिंग फॉर ऑल टाइम्स। हाँ,
ऑल टाइम। मैं कह रहा हूँ एक छोटी बात है, आप कहीं ऐसी जगह मौजूद है जहाँ ये कोई चीज नहीं, तो आप वहाँ मौजूद है, आपको पता ही नहीं चलेगा। रेफरेंस पॉइंट हाँ, ओरिएंटेशन ही नहीं। आप कहीं ऐसी जगह मौजूद है जहाँ ना कुछ सूरज है, ना चांद है, ना सितारा है, कोई चीज नहीं, पर आप अकेले हैं और बंदा भी कोई नहीं। तो इस तरह से मतलब ये है कि आपको एहसास तो है कि आप हैं, लेकिन वो इतना लिमिटेड एहसास है कि उसको हम अवेयरनेस मेंटेन नहीं कर सकते, मेंटेन जी। उसमें डिवाइड कर देते हैं अवेयरनेस और सेल्फ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमेशा रेफरेंस नहीं, मैं किसी में नहीं डिवाइड कर रही, मैं तो सिंपल बात कर रही हूँ। नहीं, मैं सिंपल बात कर रही हूँ कि आप हैं तो मैं हूँ। एक लफ्ज होता है ना मैं, उसकी क्या मुराद है? वो तो फिर वो अपनी अपनी जात नहीं। मौजूदा वक्त में अपनी जात का कोई तस्वुर आपके ज़हन में नहीं होगा, अपनी जात का कोई शऊर आपके ज़हन में नहीं होगा। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। आपका नाम क्या है, राउंड किसने दिया, ये प्रॉब्लम आ जाता है, बिकॉज हमें हमारी सारी शनाख्त हाँ, रेफरेंशियल है ना। देखिए इसको यहाँ पॉल सार्ट जो है ना, नया वजूदी फलसफी, वो तो नए जमाने से ताल्लुक रखता है। उसने कहा है कि हर चीज जो है वो रिलेशंस से उसका रेफरेंस और बनता है, और उस रेफरेंस से उसकी जात जो है फिर बनती है, उसका वजूद जो है। हाँ, शनाख्त कह लें, कुछ कह लें, आइडेंटिटी तो जरा ज्यादा एडवांस वो साइकोलॉजिकल टर्म है, फिर उसके और मतलब निकल आएंगे। लेकिन ये कि ये मेज जो है ये यहाँ पड़ी है और मेरी कुर्सी यहाँ पड़ी है, ये स्पेस में एक रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान। तो इनमें से एक गायब हो जाए तो फिर मैं क्या कहूँगी कि मेज कहाँ पड़ी है? कोई पता नहीं किधर पड़ी, कुछ भी ना हो, हवा में, जैसे साइंस फिक्शन में होता है ना, बस आप स्पेस में। सरदारों के लतीफे ऐसे बनते हैं, फलसफों को वो करते हैं जो ये घर कहाँ है, मस्जिद के सामने, मस्जिद कहाँ है के सामने, नहीं, वो तो फिर भी चले, कुछ तो है हवाले से बात नहीं, कुछ तो है। फर्ज करें कि कुछ नहीं। देखें, बू अली सीना ने एक बहुत जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया हुआ है, वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म इट। अब उसका जो साउथ एशियन स्टडीज हैं इसमें बर्कले में, वहाँ पे वो थे ना मेमन, अजीज मेमन साहब, उन्होंने उर्दू में उसका तर्जुमा किया। बड़ी मुश्किल ज़बान इस्तेमाल की है, मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई। मर्द पर अच्छा मैं उनसे कहूँगी इतनी मुश्किल तो अच्छा, मर्द परनिया और इस तरह की वो जुबान की मुश्किल। लेकिन मैं आसान आपको बताती हूँ कि बू अली सीना ने कहा कि फर्ज करें कि एक शख्स है, उसकी किसी तरीके से जैसे साइंस फिक्शन में होता है ना, किसी तरीके से उसकी तमाम हवास खत्म कर दिए जाए, यानी कि होंगी तो वो कम से कम खारिज से उनका राब्ता तोड़ दिया जाए। आंखें हों लेकिन उनका राब्ता खारिज से तोड़ दिया जाए। ये देखिए, पट्टी बांध लूंगी, बंद हो जाएंगी। कान, समात, हर चीज है आपकी, आप हैं, लेकिन आपका राब्ता खारिज से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ ज़राए के जरिए से तोड़ दिया गया है। उस सूरत में आप क्या सोच रहे होंगे? सोना भी राशि होता है बंदा, उसका बाहर ताकत खत्म हो जाता है। नहीं, सोने में माइंड इज एक्टिव, माइंड इज एक्टिव। अगर तो ये उसकी एक्सरसाइज बहुत अर्ली एज हुई है तो उसके पास कोई डेटा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इट इज hypothetical, hypothetical। फर्ज करें कि अगर उसका एक खास वक्त के बाद जब उसके माइंड ने वो तमाम चीजें याददाश्त में रखी हुई हैं, वाहना की बुनियाद, हाँ, फर्ज करें यादाश्त में, हमारी 5 सेंसेस बाहर है, 5 सेंसेस अंदर भी हैं। जैसे 5 बाहर की सेंसेस नहीं, ठीक है, चलें। जो हम चीजें सोच रहे होते हैं वो अंदर की सेंसेस से सोच। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये देखें, ये जो बाहर किताब पढ़ी है ना, दश्त, बारिश और
रात। इसमें एक कहानी है ना, एक वो जिसमें जिन सिंबॉलिकली दिखाया हुआ है और जिसको सजा मिलती है मलकुल जिन्नात से, और उसको एक डब्बे में बंद करके पानी के अंदर इस तरह फेंक दिया जाता है कि उसको नहीं पता चलता, ही loses all sense of time and space, and then slowly and gradually tries to remember the past things, as you have said, the memories of his grandparents and this and that. अच्छा कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, फिर क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगी। अगर आपको 25 साल के लिए उसके अंदर कर दिया जाए, 20 साल के लिए उसके अंदर, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, बल्कि ये जो होमलैंड से जो एक मूवी थी जिसके 4 सीजन्स भी आ चुके हैं, उसमें वो उसको हीरो जो है उसको एक गड्ढे में तालिबान जो फेंक देते हैं और उसको नहीं पता चलता, तो लेकिन फिर भी उसका रास्ता है, रोटी कोई फेंक जाता है, कोई कुछ करता है, और वो हेलो हेलो करता फिर रहा है। अच्छा उसका दिमाग माऊफ हो जाएगा, और उसका हो गया था उस हीरो का। अगर आपने वो देखी है, वो सीरीज, वो सीजन्स देखे हैं, बहुत अच्छी वो फिल्म है, मैं तो समझती हूँ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद बातों पे मुझे इतराज है, जहाँ पाकिस्तानियों के खिलाफ कहा गया है वो मैं उसके तो नहीं ज़ाहिर पसंद करूँगी, लेकिन क्या होता है, व्हाट हैपन्स दैट पर्सन जिसको माऊफ होना कहता है ना, दिमाग माऊफ हो जाना। अच्छा जब ज़हन माऊफ होता है तो फिर क्या होगा, आपको अपनी जात का भी कोई एहसास, कोई शऊर, कोई वो नहीं है। ये अगर आपको कहें ना हवास सब खत्म कर दिए जाए, मुनक़ता कर दिया जाए, कंफाइनमेंट जो सजा दी जाती है वो उसमें आपके हवास हालांकि होते हैं लेकिन कोई और नहीं होता, वो कितनी बड़ी हाँ, तो ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट है। ये जो सेंसरी डेप्रिवेशन है, इसके लिए रियल क्लिनिकल डेटा मौजूद है, इसमें साइकोलॉजिकली काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स उसमें एक तो आप फिल्म में देख लेंगे तो इस बंदे का ज़हन जो है वो कैसा है, ऑनलाइन पब्लिकेशन से मिल जाएंगे। हाँ ये जो बात कह रहे हैं ये तो बड़ी मजे की कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के साउंड प्रूफ कमरे ऐसे बनाए कि कोई साउंड नहीं आती थी, एंड द पीपल टर्न दैट विदिन वो तो यही मैं कह रही हूँ ना कि आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं हूँ। जो लोग इस चीज से गुजरे हैं ना वो जानते हैं। तो जी कही जाती है तो खुदा ने कायनात को मतलब इसलिए पैदा किया कि अपनी पहचान कराए, अपनी शनाख्त। हाँ, ये इब्न अल अरबी मसलन उनका ये है कि खुदा तन्हा था अपने हुस्न जमाल के साथ, अपनी तमाम सलाहियतों के साथ, और उसने तन्हाई की वजह से एक ठंडी आह भरी, तो फिर ये जो है आलम, ये हाँ जी, तो ये कि तन्हाई दूर करने के लिए उसने इंसान को भी। मेरा ख्याल है कि अगर खाना वगैरह किसी शख्स ना दिया जाए, ये खत्म ना कर लें, 7 बज रहे हैं। एक सेकंड, अच्छा, अगर खाना वगैरह किसी को ना दिया जाए और उसको माइंड को शुगर चाहिए, हाँ जी, तो उससे उसको अल्जाइमर या कोई प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, अलग बात है। अदरवाइज आप देखें कि हजरत अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक उसने उनमें रखा ना अपने कुएं में, एक मिसाल कुरान की है, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी 40 दिन मछली के पेट में रखा, तो आई फैक्टर डेवलप उनका था, मौजूद था उनका। लेकिन ये आप पैगंबरों की बात करते हैं, हम पैगंबर नहीं, हम तो आम इंसान है ना। तो इकबाल फिल्मों की बात बेहतर है, नहीं फिल्मों की तो ये अफगानिस्तान में जो हुआ है ना जी, ना फिल्म तखयली नहीं है। अर्ज ये है कि आपकी बात एग्जैक्टली दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि उस तरीके की जिसकी मैडम बात कर रही है या हमारे दोस्त ने बात की है, उसमें से गुजरने के बाद आप उस चीज़ का इकरार कर सकते हैं। डेफिनेटली ये क्या होता है, हमारा इशू क्या है कि हम उस तरीके में से कोई भी नहीं गुजरा, नहीं कोई नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मसलन पता है कि आप लोग अगर मेरी तारीफ न करें तो नहीं, आप लोग अगर मेरी तारीफ नहीं करेंगे तो मैं इतना कोई फिर अपने ऊपर यकीन भी मुझे नहीं रहेगा कि मैं पता नहीं हूँ भी कि नहीं हूँ। 5 दफा घर वाले इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं बंदे को।
तो बाद लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं वो हैं भी कि नहीं हैं। हाँ, जहाँ को उसने उसमें डाला था ना, यहाँ पे किले में बंद किया, कितना अच्छा रहे थे वहाँ, या उनके पास आई बेटी जहारा हर वक्त उसके पास नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो आई फैक्टर तो मौजूद रहता है। कुछ तो नजर आता था। अच्छा जी, मेरा ख्याल है ये 7 बज रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये प्लीज लिख ली, ये खत्म हो जाए। नंबर 9, इंटेलेक्ट इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। And number 10, the self manifests itself in totality. That the self in totality means the 3 aspects of the Kantian model of the mind. You were not here when we were talking about Kant. हाँ, नहीं, उसमें इंटेलेक्ट यानी कॉग्निशन आ जाती है, और उसमें दूसरा जो हिस्सा फीलिंग, अफेक्शन, और तीसरा हिस्सा एक्शन या विल पावर और कुव्वत इरादी। ये सब तीनों मिलके सेल्फ को बनाते हैं। लेकिन इंटेलेक्ट अलोन इज नॉट केपेबल ऑफ creating objects or reaching any goal. And here Iqbal clearly goes against Vedanta, according to which consciousness, which is of course intellect and cognition, is a cognitive phenomenon. If it is changed, then the self is also a different self. Change in the consciousness leads to change in the self. Iqbal does not agree with that. He says intellect or consciousness alone is not enough to change yourself. इसको जरा प्लीज रिपीट कीजिए। ये वेदांता वाले को he doesn't agree with the fact he doesn't agree with the philosophy of Vedanta, according to which intellect or alone is capable of changing the consciousness and consequently the self or the personality. Alone ये वो नहीं कहता कि इसका रोल कोई नहीं है, इंटेलेक्ट है, लेकिन अलोन ये नहीं कि मैं इधर बैठ के सोच के निढाल होती रहूं और साथ मेरे कोई वो जो मैंने सोचा है उसको मटेरियलाइज करने के लिए, उसको तकमील के मराहिल तक पहुंचाने के लिए मैं अमली तौर पर कोई कदम ही ना उठाऊं और ना मेरे अंदर कोई जज्बा हो, तो फिर नहीं, फिर सेल्फ जो है इट विल बी द इनकम्प्लीट सेल्फ। और अगर मैं साइकोलॉजी की जुबान में कहूँ तो कहूँगी कि इट विल नॉट बी अ वेल इंटेग्रेटेड पर्सनैलिटी, क्योंकि हम ये सब चीज़ें साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजीज में भी बयान कर सकते हैं। तो अब वैसे है तो सही और बातें, लेकिन 7 बजने में 10 मिनट हैं तो जल्दी जल्दी मेरा ख्याल कर लेनी चाहिए। क्या पता हमें कोई वक्त दे ना दे, लेकिन अरबाब इख्तियार का क्या पता होता है, मूड का उनका क्या पता है मुझे। तो अब ये मैंने लिखवा दिया आपको, लेकिन ये अब इकबाल के अपने जुमले हैं इन डिफेंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ द सेल्फ में से लिए मैंने। रियलाइजेशन ऑफ द टोटल सेल्फ नॉट मेयरली बाय इंटेलेक्ट बट इन ग्रेट एक्शन, यानी वो मेरी तरह एक्शन भी नहीं कह रहा, वो ग्रेट एक्शन कह रहा है। ये लिखवा रही हूँ, हाँ जी, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें। रियलाइजेशन ऑफ द टोटल सेल्फ is not possible merely by intellect
but in great action, action with capital A. And then he synthesizes, ये मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बीच में. Action is the highest form of contemplation. Then he synthesizes intellect and action. As I told you, that one of the great characteristics or distinguishing mark. Forms of contemplation. Yeah. नहीं, मैं फिर आपको बता देती हूँ. Action is the highest form of contemplation. बस ये कोट था. और वो मैं बता रही थी कि as far as I am concerned, in my humble opinion, Iqbal is a great synthesizer. He can connect the disconnected. He can create coordination between those elements which are opposite. He can make the both ends meet, which is very difficult because some of the ends are contradictories, not contraries but contradictories. They are so opposite that it is very difficult to synthesize them. तो एक तो ये तो खैर मेरा बीच में पॉइंट है. असरार खुदी में वो स्टेजेस भी इकबाल ने, मैं सिर्फ आज आपको वो लिखवा देती हूँ उनके टाइटल, तो फिर अब क्योंकि टाइम कम होता जा रहा है इस पे डिस्कशन फिर कल कर लेंगे. कल नहीं, सॉरी, मुझे आदत है ना मुसलसल क्लास में. In Asrar-e Khudi, 3 stages of the development of ego described by Iqbal himself. Number 1, complete obedience of God, mukammal ataat. And number 2, self-control, zabt-e-nafs. And number 3, when he finally becomes the viceroy of God, Niyabat-e-Ilahi, viceroy of God on earth, not in heaven. We can't decide whether we are going to hell or heaven. That is not the right we are given. We have right to freedom, of course, limited freedom. Limited. حدود ordinance ہے ویسے, یہ نہیں ہے کہ نہیں. اور we have right to live. These are the rights of ego according to Iqbal.